have you learned? To introduce Dr. Lalit Kasana, who has warmly accepted our invitation to join us today. Dr. Lalit Kasana is an accomplished individual in the field of cosmetology and aesthetics, running the best skin and hair clinic in Greater Noida as Dr. Kasana Clinic, which is world's first homeoaesthetic clinic. Now, I would like to invite Aman sir to welcome our honorable guest, Dr. Lalit Kasana, with our beautiful planter and enlighten us with few words. सबसे पहले I would like to thank Dr. Kasana ji to come here to enlighten us all on the specific topic against self-medication. घर के नुस्खे हमने सबने सुने हैं. एक चीज हल्दी और दही मिलाने का नुस्खा भी सबने ही सुना है, मगर आपने उसके लिए कभी कहीं पे आपने प्रोस कॉन्स नेगेटिव इंपैक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट इसकी स्टडी नहीं होती है. ये होता है कि लगा ले फायदा होगा, मगर इसी में कभी कभार कुछ जन कहते हैं अरे ये तो नुकसान देखे, मेरे चेहरे पे तो पूरे दाने निकल आए, कभी कुछ हो गया, किसी के ब्लैक हेड्स और हाईलाइट हो जाते हैं. हर दवा हर किसी के लिए सेम नहीं बनी. एज अ फार्मेसी स्टूडेंट आप भी ये चीज सबसे अच्छे से समझ सकते हो. हम मेडिकल लाइन में हैं, हम सारे के सारे. वी शुड बी एजुकेटेड इनफ टू नो एक दवा जैसे एक पे काम करती है वैसे दूसरे पे से नहीं कर सकती. अ प्रोफेशनल guidance, a professional consultancy is needed, and for that you being an educated professional sir himself, इन्हीं चीजों से हम और लोगों को गाइड कर पाएंगे, उनकी दिक्कत को समझ पाएंगे और एक सॉल्यूशन दे पाएंगे. एक फार्मेसी इंडस्ट्री में एक चीज अभी भी चलती आ रही है, लोग अक्सर डॉक्टर क्लिनिक इन्हें अवॉइड करके डायरेक्ट फार्मेसी पे आते हैं, पूछते हैं कि भाई ये बीमारी है एक दवाई बताइए जरा. कुछ फार्मेसीज भी क्या करती हैं, इसकी 2 गोली ले लेना, इसकी 1 ले लेना और काम चला लेते हैं. I am a little against that, and I would give back the dice to ma'am, and thank you sir for joining us again. Now, get back to Dr. Lalit Kasana has more than 10 years of experience in this field as an expert in performing all kinds of non-surgical aesthetic treatment. He has numerous awards and recognition for his excellent work and holds the world record for most mole removal in only 1 minute. He has been conferred with the Bharat Gaurav Award in 2015, the Medical Excellence Award in 2015, the Global Lifestyle Award in 2015 also. The cosmetologist and aesthetician in North India in 2016, Best Cosmetologist and Aesthetician in India in 2017 also. And Healthcare Icon of the Year of 2017. Along with all these prestigious awards, he owns membership of Indian Homeopathic Medical Association, membership of National Cosmetology Association USA, and membership of American Cosmetology Association. He was part of Belgium's popular TV show on the Belgian Indian TV channel for the very first Control Pedro. Dr. Lalit Kasana ran his live beauty show
called Dr. Kasana's Beauty on TV24. Now, I would like to invite our HOD, Dr. Meenakshi ma'am, to welcome our honorable guest. I welcome Dr. Kasana, Lalit Kasana sir, and all my students and faculty members to this guest lecture. We are all gathered here for the guest lecture on stopping the self-medication in acne. So we all know that हम समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है और हम वो लगा लेते हैं. So this is what the lecture is all about today. That we should stop putting the self-medication and we should go with the doctor's advice. So this is what Dr. Lalit Kasana is going to today discuss with us about the stopping the self-medication. So I welcome you, Dr. Kasana. सबसे पहले अभी जैसे आपने सुना हो भाई अवार्ड वगैरह सारी चीजें सुनकर आपको लगा होगा कि भाई आज तो बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें होंगी, सारी चीजें होंगी. तो सबसे पहले बता दूं कि इस सेशन को इतना सिंपल रखेंगे कि जैसे एक बड़ा भाई बात कर रहा हो. ठीक है. और हमारी ये कोशिश है, मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस सेशन के एंड होने तक एटलीस्ट आपको जो हमारा टॉपिक है कि सेल्फ मेडिकेशन, वो एटलीस्ट इतना क्लियर हो जाए कि आप औरों को भी सजेस्ट कर सकें कि भी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और खुद भी कभी ये चीज अपनी लाइफ में ना दोहराएं. अब मैं ये क्यों कह रहा हूं खुद अपनी लाइफ में ना दोहराएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनमें से एक भी ऐसा होगा कि जिसको लाइफ में कभी एक्ने नहीं हुआ है. कोई ऐसा जिसको कभी एक्ने नहीं हुआ? कभी ना कभी तो होता है. और एक्ने होते ही सबसे पहले लगता है कि यार बस ये खत्म हो जाए, इससे मुझे छुटकारा मिल जाए. अब चाहे मैं कोई हल्दी बता रहा है, कोई दही बता रहा है, नींबू बता रहा है, कुछ भी बता रहा है कि बस एक बार इसको यूज कर लूं, ये मेरा बस खत्म हो जाए तो मेरी समझो कि जिंदगी संवर जाए. हाँ, और उस टाइम फिर वही लगता है. अब यही मेरे दिमाग में भी आया कि यार अच्छा यार मुझे तो एक्ने के लिए ही लेके जाना है यार, चलो मैं भी कुछ ट्राई कर लूं. जैसा मैम ने बताया चलो सैलिसिलिक ट्राई कर लूं, कुछ भी ट्राई कर लूं. बट एक्चुअल होता क्या है? ठीक है, मैंने पहले बताऊं मैंने कुछ ट्राई नहीं किया क्योंकि मुझे पता है 2 दिन में अपना आप खत्म होगा. अगर इस पर कुछ ट्राई करने की कोशिश करूंगा तो ये स्किन बर्न होकर उल्टा कम से कम भी 15-20 दिन में और खिंच जाएगा. अभी ये है कि हल्की सी रेडनेस है, रेडनेस रिड्यूस होगी, अपने आप धीरे धीरे करके बॉडी सेल्फ हील कर देगी और स्कार नहीं बनेगा. विद इन 8 डेज उसका निशान भी चला जाएगा. बट अगर यहाँ पे हम कुछ ट्राई करने लगेंगे तो वो धीरे धीरे करके बढ़ जाता है. और अभी मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दूंगा, हालांकि अभी सभी लोगों ने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल सुने भी होंगे, देखे भी होंगे कि वो इतने मतलब वर्स कंडीशन हो जाती है कि बहुत ज्यादा, मतलब आप सोचो कि एक एक्ने ठीक करने के चक्कर में परमानेंट स्कार्स पड़ गए. ठीक है, तो वो बहुत बुरी कंडीशन होती है. अब टॉपिक जब एक्ने है तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ नॉलेज दे देता हूं भी एक्चुअल में एक्ने होते क्यों हैं. ठीक है, क्योंकि तभी सेल्फ मेडिकेशन की बात तभी आएगी कि जब आपको पता तो लगे कि भाई यार ये एक्ने हो क्यों रहे हैं. तो आप सभी ने थोड़ा बहुत एक्ने के बारे में सभी ने पढ़ा भी होगा क्यों होते हैं. तो और यहाँ पे अच्छी बात ये है कि आप सभी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं एक तरह से जो है, तो आपको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको इजीली सारी चीजें समझ में आ जाएंगी. देखो एक्ने क्या है, एक्ने सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर 5 मिनट्स के अंदर पूरा टॉपिक खत्म करूंगा, एजुकेशनल पार्ट. ठीक है, कि क्यों होता है. देखो एक्ने 3-4 तरह के होते हैं. 4 तरह के एक्ने हम मानते हैं. वन इज कॉमेडोजोनिक एक्ने, यानी कि जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स होते हैं. उसके बाद जो है पैप्यूल्स, यानी कि वही ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स अगर रेड कलर के आपके जो है अगर वो छोटे छोटे बम्स टाइप के दिख रहे हैं. इसके बाद आ जाते हैं पस्ट्यूल्स. पस्ट्यूल्स यानी कि उसके अंदर अगर प्रॉपर पस फॉर्मेशन अगर हो गया है ना, जो व्हाइट कलर का पस जो है हो जाता है. और इसके बाद आते हैं आपके सिस्टिक एक्ने, यानी कि वो बहुत नोड्यूलर एक्ने, बहुत ज्यादा मोटे मोटे एकदम एक्ने जो बहुत गांठे टाइप की रह जाती हैं और जिनको खत्म होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है. तो ये सारे के सारे एक्ने, अब इनकी स्टार्टिंग कहां से होती है? मोस्टली यंग लोगों में, है ना. एक ये भी एक आप उसको क्या बोलेंगे, मिथ कह लो या कह लो कि भाई जब यंग एज में आते हैं तो सब बोलते हैं कि यार नॉर्मल उसमें बताऊंगा कि भाई लड़के की जो है जवानी फूट रही है ना, बोलते हैं, सुना होगा हर किसी ने अपने उसमें जो है. अब एक्चुअल में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं जो हार्मोनल इंबैलेंस होते हैं, है ना. जैसे ही हम एकदम टीन एज में आते हैं तो हार्मोन्स वगैरह चेंज होते हैं, तो वहां पे सबसे बड़ा जो इफेक्ट आता है वो आता है हमारी सेबेसियस ग्लैंड्स के साथ.
अब सीबेशियस ग्लैंड्स क्या हैं, आप सभी को पता होगा कि सीबम जो बॉडी को ऑयली रखने के लिए, हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए, बॉडी के अंदर हमारी हेयर फॉलिकल्स के साथ में ग्लैंड्स होती हैं जो सीबम प्रोड्यूस करती हैं, जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। बट वही सीबम अगर आप पूरा क्लीन नहीं कर रहे हैं, आप केयर नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि भी आप कॉलेज से घर गए, घर जाके आपको फील हो रहा है यार बाहर बहुत ज्यादा डस्ट लगी, डर्ट लगी, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक बार इवनिंग में ही अपना फेस वॉश करेंगे, ठीक है, और आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो क्या है, पसीना है ना, स्वेटिंग हुई, धूल मिट्टी लगी, ये सारी चीजें मिलकर बाहर आने से रोकते हैं और वो सीबम स्किन के अंदर कलेक्ट होने लगता है। अब वो बाहर तो नहीं आ रहा है, अंदर स्किन के कलेक्ट हो रहा है, तो कई बार क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा पोर कलेक्ट होने लगते हैं तो आपको ये फील होने लगता है कि यार मेरी स्किन तो ड्राई रहती है। मोस्ट आस्किंग जो क्वेश्चन है वो ये होता है कि डॉक्टर मेरी स्किन जो है वो ऑयली है, ड्राई है, टाइप जो है ना, ये सबसे बड़ा एक मिथ है कि किसी को लगता है कि यार अच्छा मेरी स्किन ऑयली है तो मैं ड्राई वाले प्रोडक्ट यूज करूंगा, ऐसे प्रोडक्ट यूज करूंगा कि जो मेरी स्किन को ड्राई करें, या किसी ने बता दिया कि अच्छा आपकी स्किन पे ऑयल आ रहा है, आपकी स्किन ऑयली है, तो अब आपको ऐसे सारे प्रोडक्ट यूज करने हैं जो स्किन को ड्राई करे। जिसको ड्राई है उसको लगेगा कि ऑयली वाले प्रोडक्ट यूज करें। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है कि अगर आपको तो फील हो रहा है कि भाई आपकी स्किन जो है वो ड्राई है, लेकिन एक्चुअल में वो सीबम नहीं आ रहा है बाहर, इसलिए वो ड्राई लग रही है। अब आप क्या करेंगे, बहुत ज्यादा कोको बटर, सिया बटर, उस तरह के प्रोडक्ट फेस पे यूज करेंगे और उसकी वजह से वो और ज्यादा हाइपर एक्टिव जो है एक्ने हो जाते हैं, ठीक है। तो वहीं पे आऊंगा कि डेड सेल्स ने ऊपर से सुपरफिशियली ब्लॉक किया तो क्या हुआ, वो कोमेडोन्स अंदर वो बनने लगे, तो वो होती है एक्ने की फर्स्ट स्टेज, ठीक है। वो आपके लिए इंडिकेशन है कि हाँ यार मुझे अभी जो है ध्यान दे लेना चाहिए, अदरवाइज मेरा एक्ने धीरे धीरे बढ़ जाएगा, क्योंकि वो स्किन के अंदर धीरे धीरे करके कलेक्ट हो रहा है। आपको छोटे छोटे बम्स टाइप के दिख रहे हैं, अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाते हैं पोर से तो वो ब्लैक हो जाते हैं, ब्लैक हेड बन जाते हैं, अदरवाइज वो छोटे छोटे बम्स टाइप के स्किन के अंदर ही दिखते रहते हैं, जिसको हम व्हाइट हेड बोलते हैं। वो महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना ऐसे ही स्किन के अंदर रहते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो होती है आपकी हाइजीन के ऊपर, है ना। या तो किसी किसी को अगर जैसे नॉर्मल पी ओवर, आपने गंदा टॉवल यूज किया, आपने जो है पिल्लो वगैरह जिस पे आप सो रहे हैं वो अच्छे से क्लीन नहीं है, आप बहुत अच्छी हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, फेस वॉश नहीं कर रहे हैं, मेकअप वगैरह अगर कर रहे हैं तो मेकअप करने के बाद आप उसको प्रॉपर क्लीन नहीं कर रहे हैं, है ना, फाउंडेशन वगैरह यूज कर रहे हैं, ये खासकर गर्ल्स के लिए है ना। और देखो बीच बीच में मैं आपको ऐसी चीजें बताता रहूंगा, ऐसा नहीं क्योंकि ये कोई एक प्लान वो नहीं है कि भाई मैं कुछ रट के आया हूं आपको बता रहा हूं। तो यहीं से ही देखो एक टॉपिक बहुत अच्छा आया है कि गर्ल्स के लिए जब भी आप कोई भी कॉस्मेटिक्स यूज करें, है ना, कोई भी आप ब्यूटी प्रोडक्ट अगर यूज कर रहे हैं, दैट शुड बी नॉन कमोडोजेनिक, है ना। वो इजीली आप कहीं भी जाएंगे खरीदेंगे वो इजीली मिल जाते हैं, चाहे वो फाउंडेशन है, चाहे वो मस्कारा है, कुछ भी कोई भी चीज है वो सब नॉन कमोडोजेनिक होते हैं। अब नॉन कमोडोजेनिक, कॉमेडोन्स यानी कि एक्ने, है ना, कई बार लोगों को वर्ड समझ में नहीं आता है कि भाई आप नॉन कमोडोजेनिक तो यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, बट एक्चुअली नॉन कमोडोजेनिक, तो वो बहुत इजीली, जैसे मैक वगैरह हैं, बहुत सारे आजकल जितने भी अच्छे ब्रांड्स हैं वो सारे के सारे ब्रांड्स जो है वो अवेलेबल होते हैं, तो वो आप यूज करें तो उसका फायदा ये होगा कि वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे और वो आपके पोर्स को ब्लॉक नहीं करेंगे। अदरवाइज जो फाउंडेशंस होते हैं वो फाउंडेशन सबसे ज्यादा आपके पोर्स को ब्लॉक करते हैं, क्योंकि आप कम से कम भी 5-6 घंटे के लिए लगाते हैं, तो फाउंडेशन का तो काम ही यही है कि आपके पोर्स को ब्लॉक करके और ऊपर से स्मूथनेस दे फेस को। तो है कि जब भी आप उसको, इवन आप चाहे नॉन कमोडोजेनिक भी यूज कर रहे हैं तो भी आप क्लीन बहुत अच्छे से करो, ठीक है। अगर क्लीन नहीं करते हैं, छोटा बहुत आपको एक्ने हुआ, छोटा बहुत अभी ब्लैक हेड हुआ है, आप चाह रहे हैं कि यार ये जल्दी से जल्दी रिमूव हो जाए, एक है कि आप जबरदस्ती उसको दबा के निकाल रहे हैं, तो जब हम जबरदस्ती उसको दबा के निकालेंगे तो वो स्कार छोड़ देगा, चाहे वो छोटा सा भी है तो भी वो एक परमानेंट स्कार छोड़ेगा, जो गड्ढे टाइप के धीरे धीरे स्किन पे हो जाते हैं। तो इसीलिए कभी भी एक्ने निकले तो उसको जबरदस्ती नहीं दबाना है, ठीक है। सेकंड, अब क्या होता है, जो आपका एक्ने है उसमें पी ओवेलिक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे से क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, केयर नहीं रख रहे हैं, तो उसमें पी ओविल बैक्टीरिया ग्रो करने लगता है, जो पस फॉर्मेशन बनाता है, जो पेप्यूल और पस्ट्यूल्स जो है वो आपके उससे निकलने लगते हैं, ठीक है। वहीं पे ही अगर वो ज्यादा हो जाए, जो हमारी इंटरनल वो पहुंच जाए अंदर तक, जो है बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई है, तो वो हमारी सीबेशियस ग्लैंड की जो कैविटी है उसको ब्रेक करके साथ के जो टिश्यूज है उसको इन्वॉल्व कर लेता है, फिर उसकी कोई लिमिट नहीं रहती, और वहां पे वो कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं, क्योंकि वो बार बार हील होते रहते हैं, बनते रहते हैं, तो प्रॉपर वो सिस्ट बन जाती है,
तो ये सबसे खतरनाक स्टेज है, क्योंकि ये परमानेंट स्कारिंग छोड़ देती है, कीलॉइड टाइप के बन जाते हैं। अगर बहुत अच्छे से भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो भी वो सिर्फ एक्ने खत्म हो जाएगा, इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका जो कीलॉइड है, जो कनेक्टिव टिश्यूज, कोलेजन जो बना है, वो खत्म नहीं होता है, जिसकी वजह से वो परमानेंट स्कारिंग रह जाती है। हालांकि आजकल बहुत सारे एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं जिनके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे कि क्या क्या ट्रीटमेंट किस चीज के लिए हम ले सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि भाई कि बेसिक क्यों एक्ने होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कई ऐसी लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीजें हैं जो इस चीज को ट्रिगर करती हैं। जैसे स्टूडेंट्स में, अब आप लोगों का क्या लाइफस्टाइल है भाई, सुबह एक बार घर से निकल गए, शाम को जाना है। कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई कहीं वर्क कर रहे हैं या फिर आप इवनिंग में ट्यूशंस वगैरह हैं तो लेट नाइट ही अपना घर पहुंच रहे हैं, है ना। उस दौरान अपना धूल मिट्टी सारी चीजें, धूप और तरह तरह का खाना, सारी चीजें, जगत फार्म भी सामने ही है ना। तो छुट्टी के बाद यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पूरी गली वो वही है। तो ये सारी चीजें क्या है कि ये एक अच्छी डाइट, अगर आप बहुत अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, जंक फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं, है ना, तो ये ट्रिगर करता है। ठीक है, आजकल जो नई स्टडीज हैं वो क्या कहती हैं कि नहीं यार, खाने का बहुत ज्यादा ऑयली जंक फूड का प्रभाव नहीं पड़ता आपके एक्ने पे। बट मेरा ऐसा मानना है कि खाने का हो सकता है कि डायरेक्ट आपके एक्ने पे इफेक्ट ना पड़े, बट वो आपकी लाइफस्टाइल को बहुत इफेक्ट करता है, और लाइफस्टाइल की वजह से ही आपके एक्ने जो है वो होते हैं। तो अगर किसी को थोड़ा बहुत भी एक्ने जब फील हो रहा है ना, थोड़ा बहुत एक्ने निकलने लगा, तो उसको क्या करना चाहिए, एक तो अपना डाइट। ठीक है, मैं हमेशा बताता हूं कि भाई वाटर इनटेक बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप 4 से 5 लीटर पानी डेली पी रहे हैं तो इट मींस स्किन से रिलेटेड और आपकी बॉडी से रिलेटेड आप कम से कम भी लगभग 80% चीजों को तो वैसे ही ठीक कर लेते हैं, है ना। लेकिन ये चीजें कहने में बहुत आसान लगती हैं। क्या डॉक्टर साहब कह रहे हैं चलो 5 लीटर पानी, मैं भी 5 लीटर पानी पी लूंगा। डॉक्टर साहब खुद 5 लीटर पानी नहीं पी पाते, है ना। कितने लोग हैं जो 5 लीटर पानी पीते हैं, कितने नहीं पी पाते, है ना। आप बहुत ज्यादा करेंगे भी तो 1 दिन पी लेंगे, 2 दिन पी लेंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता। बट फिर भी ये है कि अगर 3 लीटर तक भी आप पानी पी रहे हैं वो बहुत अच्छा है। अदरवाइज सबसे पहले क्या करो, अगर पूरे दिन में आप 3 लीटर पानी पी रहे हैं और सुबह सुबह खाली पेट उठ के कम से कम 1 लीटर पानी पी लेते हैं, तो मेरी नजरों में वो बराबर है। तो एक अपना सभी रूटीन बना लो कि जब भी सुबह उठो, सुबह उठ के खाली पेट जितना ज्यादा से ज्यादा पानी हो सकता है उतना पानी पियो, और फुल स्टमक। वो पहले दिन ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन में ही 1 लीटर पानी पी लें, है ना। ऐसा होगा कि पहले दिन आप लेंगे तो आपको चाहे 1 गिलास ही पानी पिया जाएगा। ऐसे कितने लोग हैं कि जो बिल्कुल भी पानी नहीं पीते सुबह उठ के खाली पेट, बहुत है, अधिकतर है। ठीक है, तो एक रूटीन बनाओ कि चाहे 1 गिलास पानी ही पीना हो, सुबह उठ के खाली पेट पानी पीना है। और वो धीरे धीरे करके अपना टारगेट बनाओ कि भाई मुझे 30 दिन तक लगातार करना है। क्योंकि एक ह्यूमन बिहेवियर है, एक स्टडी है कि आप किसी भी काम को लगातार 22 दिन तक करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है ना। आप 30 दिन तक लगातार पियो, 31वें दिन आपको जो है लगेगा कि भाई नहीं यार, ये तो मेरी बॉडी की नीड है, मुझे पानी पीना ही पीना है, चाहे कैसे भी पीना है। और उसको डेली बढ़ाओ। आपने आधे गिलास से स्टार्ट किया, चाहे 1 घूंट से स्टार्ट करो, 1 गिलास पानी लो, अगले दिन 1.5 गिलास पानी लो, 2 गिलास पानी लो, नहीं पिया जा रहा 4-5 दिन 1.5 गिलास करो, 2 गिलास करो, फिर उसको 2.5 करो, 3 करो, ऐसे करके इजीली धीरे धीरे वो हो जाएगा। और जो लोग पीना चाहते हैं उनके लिए बता दूं कि डायरेक्ट बॉटल से पानी पियो, है ना। वो पीने में बहुत इजी रहता है। जब गिलास गिन के पानी पीते हैं ना तो लगता है यार 1 पी लिया, 2 पी लिया, 3 पी लिया, है ना। बॉटल से वो पता नहीं लगता, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करता हूं। तो ये अपनी हैबिट बना लो कि भी ज्यादा से ज्यादा अपना जो है पानी सुबह सुबह पीना है। ठीक है, डाइट अपनी प्रॉपर रखो, कोशिश करो कि जितना हो सकता है वो जंक फूड की जगह अपना घर का खाना यूज करो, है ना। वर्कआउट बहुत ज्यादा जरूरी है, वर्कआउट करो। तो ये सारी चीज अगर आप करते हैं, क्लीन फेस को कम से कम भी 2 बार फेस वॉश के साथ, है ना, सुबह और रात को सोते हुए। जरूरी नहीं हर बार कि आप जितनी बार भी फेस वॉश कर रहे हो उतनी बार आप जो है मतलब फेस वॉश के साथ ही यूज करो, है ना। नॉर्मल एक्ने हो रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप उसको जो है वॉश करो, है ना। तो इस चक्कर में लोग क्या करते हैं, अपने फेस को ओवर ड्राई कर लेते हैं, है ना। अगर आप बार बार उसको वॉश करेंगे, बार बार उस पर ऐसे प्रोडक्ट यूज करेंगे, सैलिसिलिक यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्ने हैं तो सैलिसिलिक बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, उसमें से ही स्किन जो है बहुत ज्यादा ऑयली है, और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होगा तो वो और ज्यादा आपके एक्ने को बढ़ाएगा। ठीक है, तो अभी चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि कहां पे क्या चीज हो रही है और क्या चीज इसकी जगह करें। कई बार क्या होता है कि लोग जो है बहुत सारी ऐसी चीजें कि आपको फील होगा कि यार अच्छा, एक चीज माइंड में आई कि यार एक्ने मतलब ऑयल, अब हमको ऑयल को खत्म करना है। बहुत ज्यादा बर्निंग, रेडनेस फील होने लगेगी, सन रेज से प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सनस्क्रीन हर कोई यूज नहीं करता है
है ना। और अगर आप बहुत अच्छे से उसको नहीं करेंगे तो डलनेस, टैनिंग आएगा, और उसके बाद फिर अगर ज्यादा होगा तो पिगमेंटेशन आने लगती है। अब फिर उस पिगमेंटेशन को हटाने के लिए कुछ ना कुछ यूज करेंगे, होम रेमेडीज वगैरह यूज करेंगे, तो वो फिर परमानेंट आपको जो है और ज्यादा पिगमेंटेशन आने लगती है ना। आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा कि आजकल हाइपर पिगमेंटेशन एक बहुत ही कॉमन इशू है ना। हर किसी को, पहले होता था कि भाई चलो प्रेगनेंसी के टाइम पे किसी को पिगमेंटेशन हो रही है, वो धीरे धीरे डाइट से ठीक हो जाती थी। अभी नॉर्मली पिछले 15-20 सालों में आपने देखा होगा कि भाई हर किसी को ही, मतलब किसी की भी फैमिली में 1-2 लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत ज्यादा हाइपर पिगमेंटेशन होगी। और आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि उन्होंने इतने टाइम से हर कुछ यूज कर लिया लेकिन वो खत्म नहीं हो रही है पिगमेंटेशन। क्यों नहीं होती है? दैट इज बिकॉज ऑफ सेल्फ मेडिकेशन। ठीक है, अभी होता क्या है एक्ने से हटके, हालांकि हमारा क्वेश्चन जो है वो पिगमेंटेशन पे आ गया। होता क्या है कि आप लोग सभी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, ठीक है। अभी आप लोगों ने में से कितने लोगों ने, मुझे लग रहा है 100% सभी ने देखा होगा कि किसी को भी पिगमेंटेशन हुई तो सबसे पहले एक क्रीम का नाम सामने आता है, दैट इज स्किन लाइट। ठीक है, स्किन लाइट, मेलालाइट, हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोइन, मोमेटाजोन, ट्रिपल कॉम्बिनेशंस जो क्रीम्स हैं, ठीक है, वो हर किसी ने पिगमेंटेशन के लिए एक ना एक बार यूज जरूर किए हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये क्रीम्स हैं, है ना। और ये तो एक बहुत छोटी चीज है, चलो ये यूज कर रहे हैं फिर भी ठीक है, क्योंकि ये चीजें तो मैं अपने क्लिनिक पे डेली देखता हूं कि लोग सोचेंगे कि भाई अच्छा, और वो नेचुरली वर्क करते हैं। अगर आप स्टेरॉइड्स कुछ भी फेस पे यूज कर रहे हो तो वो यूज करेंगे। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो 10-10 साल से फेस पे जो है आपका जो है बेटनोवेट यूज कर रहे हैं, पैंडर्म यूज कर रहे हैं। अब आप सपोज एंटी फंगल फेस पे लगा रहे हो, आप इतने हाई स्टेरॉइड फेस पे लगा रहे हो, तो फेस की क्या स्थिति होगी, है ना। ऐसा होता है कि आप एक दिन भी बिगर उसके अप्लाई किए हुए नहीं रह सकते हैं। आप एक दिन नहीं लगाएंगे तो एक दिन में ही आपके फेस पे बहुत ज्यादा रेडनेस, यूट्यूब या हर जगह जो वीडियोस मिलती हैं वो आपकी लेजर की वीडियो मिलती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमें उल्टा लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि नहीं, आपको लेजर नहीं कराना है ना, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सेंसिटिव स्किन हो रखी होती है। PIH यानी कि पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, कितने लोगों को पता है? PIH के बारे में पता है? हाँ, ठीक है। देखो PIH क्या होता है, यानी कि आपने कोई भी स्किन प्रोडक्ट यूज किया, कोई भी आपने फेस पे अपनी स्किन लाइटनिंग के लिए या फिर चेहरे को गोरा करने के लिए, एक्ने के लिए कोई भी ऐसी चीज फेस पे यूज की जिससे स्किन पे सेंसिटिविटी आ गई, रेडनेस आ गई, और उस रेडनेस के बाद जो हीलिंग होती है, हीलिंग मतलब बर्न टाइप की जो स्किन हो जाती है, इन्फ्लामेशन आती है, रेडनेस आके जो एक नीलापन टाइप का फेस पे हो जाता है, उसको हम बोलते हैं PIH। ठीक है, अब वो PIH को ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। आज के टाइम पे 90% लोगों को जो एक्ने में आपने देखा होगा, अगर बात एक्ने की हो रही है कि एक्ने के लिए आपने कुछ यूज किया और बाद में फिर जो स्पॉट प्रॉपर बर्न टाइप के रहते हैं, है ना, जो खासकर लेमन यूज करने के बाद फेस पे किसी ने मेडिसिन यूज की कि हल्का सा पिंपल हुआ, तो सबसे पहला क्या मेडिसिन आती है दिमाग में पिंपल के लिए कि भाई लेमन यूज कर लो, है ना। विटामिन सी बहुत अच्छा है, विटामिन सी बहुत अच्छा है, भी लेमन से जो है ठीक हो जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा जो फेस पे नुकसान होता है वो लेमन की वजह से ही होता है ना। अब लेमन क्या करेगा, लेमन हाई सिट्रिक एसिड है और वो फेस को बर्न कर देता है। मतलब ऐसे ऐसे पेशेंट मेरे पास आते हैं कि फेस बहुत अच्छा था और लेमन यूज करने के बाद फेस एकदम बर्न हो गया। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपने, अगर जिन लोगों की देखो स्किन बहुत अच्छी है, हो सकता है कि उनको लेमन से बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े, बट जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनकी स्किन पे बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट उसके आते हैं। तो लेमन तो एक ऐसी चीज है कि जिसको मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूं कि भाई लेमन वगैरह फेस पे यूज करो। और जैसा कि अभी सर ने बताया था कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हर किसी को वो सूट नहीं करती हैं। ठीक है, हमें क्या लगा कि यार अच्छा, जैसे हल्दी है, ठीक है, हल्दी के एज ए मेडिसिनल अगर आप उसको यूज करेंगे तो बहुत अच्छे इफेक्ट हैं, बट कू फॉर्म में अगर उसको यूज कर रहे हैं तो वो उतने अच्छे इफेक्ट नहीं देगी। इनफैक्ट आप लोगों को पता होगा कि हल्दी अगर यूज करते हैं फेस पे तो लाइटनिंग की जगह उल्टा वो डार्कनेस देती है। नॉर्मल डॉक्टर तो, डर्मेटोलॉजिस्ट की तो बात है, नॉर्मल डॉक्टर नहीं मिलते थे, है ना। तो उस टाइम पे क्या, उस टाइम पे यही ऑप्शन होता था कि अच्छा यार ये ठीक है, नुस्खे जो है किसी ने अपने ट्रेडिशनल तरह से चलते आ रहे हैं तो उनको यूज कर लो। और सबसे बड़ी बात है कि उस टाइम पे रहना सहना, खाना पीना, हमारा इन्वायरमेंट फैक्टर्स उस तरह के नहीं थे, हम लोगों की स्किन उतनी ज्यादा सेंसिटिव नहीं थी जितनी आज की डेट में हो गई है ना। तो उस टाइम तो ये है कि रफ टफ होते थे लोग, 24 घंटे अपना धूप का एक्सपोजर, कोई सनस्क्रीन नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा रफ टफ स्किन होती थी, थोड़ा बहुत कुछ यूज कर लिया तो स्किन बहुत अच्छे से आपको जो है वो इफेक्ट होता था। बट आज के टाइम पे वो चीजें नहीं है,
है ना। अभी तो हम लोगों को इतना होता है, हमको बीइंग ए डॉक्टर मतलब कई बार सोचना पड़ता है कि यार इसको दे क्या, क्योंकि उसको ऐसे लोग हैं कि जिनको विटामिन सी से भी एलर्जी है, सैलिसिलिक भी बहुत ज्यादा ओवर ड्राई कर देता है ना किसी को, तो बहुत ज्यादा सोच समझ के प्रोडक्ट देने होते हैं और वहीं पे ही हम ऐसी ऐसी चीजें यूज कर लेते हैं कई बार कि वो बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन जो है फेस की कर देती हैं। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा हमें ध्यान देनी है कि अच्छा हो ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि उनसे बुरा जरूर हो जाता है होम रेमेडीज से। ठीक है, और ऐसा भी मैं नहीं कहूंगा कि हर होम रेमेडी बुरी है ना। बहुत सारी होम रेमेडी हैं जो अच्छे रिजल्ट देती हैं, है ना। मुल्तानी मिट्टी जैसे है, मुल्तानी मिट्टी एक सेफ मान के चलते हैं हम कि भी सेफ है कि वो नुकसान नहीं दे रही है, बट मुल्तानी मिट्टी के लिए भी बता दूं, जिन लोगों की ओवर ड्राई स्किन है उनको वो बहुत ज्यादा ड्राइनेस दे देती है, क्योंकि मड का काम होता है वो ऑयल को एक्सट्रैक्ट करता है ना। तो वो उनके लिए मतलब बात का निचोड़ ये है कुल मिला के कि एक ही चीज जो हम दे रहे हैं, सेम लाइक मेडिसिन, अगर आप एक मेडिसिन किसी को दे रहे हैं तो अगर आप 100 इंडिविजुअल को दे रहे हैं तो 100 लोगों में उसका अलग अलग तरह का इफेक्ट होता है ना। सेम ऐसे ही होम रेमेडीज का भी है, हो सकता है कि आपने यूज किया हो तो आपको उसका बहुत अच्छा इफेक्ट मिल जाए, और आपने किसी दूसरे को रिकमेंड किया उसको उसका उतना ही नेगेटिव इंपैक्ट मिल गया, उतना ही नेगेटिव उसका इफेक्ट आया। तो ये चीजें हैं कि एक चीज हो सकती है वो एक के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन 1000 लोगों के लिए वो उतनी अच्छी नहीं होगी, बहुत बैड इफेक्ट उसके होंगे। तो इसलिए आपको कुछ भी कभी भी दिक्कत है तो एक एक्सपर्ट की राय लो। और आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि मुझे लगता है कि एक मेडिसिनल नॉलेज जो होती है, डॉक्टर से ज्यादा एक फार्मासिस्ट को मेडिसिन की नॉलेज होती है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि नॉर्मली इंडिया में एक चलन है कि भी डॉक्टर जो है वो खुद मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, बाहर क्या होता है कि एक डॉक्टर का काम है डायग्नोज करना। ठीक है, डॉक्टर का काम है कि भाई आप जो है अपना प्रॉपर अपना मेडिसिन लिया, मेडिसिन की अच्छा आपको जो है एक्ने है, किस वजह से एक्ने है, क्या चीज है, और वो रेफर कर देते हैं एक फार्मासिस्ट को कि भी अच्छा भी एक फार्मासिस्ट बताएगा कि इसकी बीमारी के हिसाब से कौन सा साल्ट इसको अच्छा है। ठीक है, क्योंकि बीइंग ए डॉक्टर मुझको पता है कि भाई सैलिसिलिक एसिड इज गुड, सैलिसिलिक एसिड की ये चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं। ठीक है, एक्ने के लिए और चीज है, एंटीबायोटिक्स है, एजिथ्रोमाइसिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, क्या है। लेकिन बीइंग ए फार्मासिस्ट आप लोगों को पता है कि एक्चुअल उसमें मॉलिक्यूल्स किस तरह से होते हैं, क्या कौन सा बॉडी में कौन सा एब्जॉर्ब होगा, आप लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो मेरी नजरों में जो है वो बीइंग ए फार्मासिस्ट उसको बहुत अच्छे से नॉलेज होती है ना। और रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की, क्योंकि आप अभी कौन से ईयर के हैं आप लोग यहाँ पे जो है, सेकंड ईयर, है ना। तो देखो आप लोगों के लिए तो एक बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी इसको कह लो, क्योंकि ये तो समझो कि आप लोगों का ही एक फील्ड हो गया कि भी सेल्फ मेडिकेशन को एक तरह से किस तरह से हटाया जाए। और सेल्फ मेडिकेशन अगर थोड़ा बहुत भी इस चीज में सपोर्ट होता है ना, क्योंकि नॉर्मली देखो डॉक्टर के पास जाने से पहले सबसे पहले जो एक पेशेंट कह लो या एक नॉर्मल लेमैन जो जाता है वो एक फार्मासिस्ट के पास ही जाता है कि भाई मुझे ये चीज है इसके लिए बता दो, तो वो अपना एक बेसिक सी चीजें आपको जो सजेस्ट कर देते हैं कि यूज कर लो। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक फर्स्ट स्टेप पे वो ठीक भी है, चलता भी है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूं कि भाई नहीं आपको एक छोटा सा चीज होती है, एक पिंपल होती है या कुछ होती है, आपको अपना डर्मेटोलॉजिस्ट के पास या कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, तो वो इंडिया में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो मुहिम है तो इसको करने का सबसे ज्यादा जो एक मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा जो सहयोग मिल सकता है वो आप लोगों से ही मिल सकता है ना। क्योंकि फर्स्ट चीज जो गाइडेंस आप देंगे वही देगा। और सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी है कि लोग जो है ना डॉक्टर के साथ इतने मतलब बहुत ज्यादा फ्रैंक नहीं होते जितने आप एक फार्मासिस्ट से बात कर सकते हैं, है ना। आप जाके उससे सारी चीज बताते हैं कि यार ये दे दो, ये दे दो, नहीं अच्छा ये तो यार बहुत महंगा है, कुछ सस्ता सा दे दो, तो वो बहुत खुल के मतलब एक फार्मासिस्ट से बात कर सकते हैं। और ये तो हुई फार्मेसी की बात। और वैसे भी आप लोग एज ए रिसर्चर, भाई जितनी भी मेडिसिन बनती हैं, नया कोई मॉलिक्यूल बन रहा है, वो सारी चीजें आप ही तो बना रहे हो। ठीक है, बीइंग ए डॉक्टर मैं तो क्लिनिक में बैठ के नहीं बना रहा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को बता दूं मैंने भी डी फार्मा किया हुआ है। ठीक है, तो वो डी फार्मा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मेरी खुद की कॉस्मेटिक कंपनी है अपनी, जो है मेरे मोर देन 40 प्रोडक्ट्स आते हैं जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, मेरे खुद के लगभग 5-6 ब्रांड्स हैं। तो उस चीज को समझने के लिए, है ना, तो मैंने अपना खुद की जो है मैंने अपना डी फार्मा किया, और उस एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, है ना, क्या क्या चीजें अपना होनी चाहिए, उस चीज को मैं तभी समझ पाया। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आप लोग, मुझे लगता है कि आने वाले फ्यूचर हो देश का जो है, कि जिसके अंदर ये पावर है कि वो एक ऐसे नए मॉलिक्यूल दे सकता है, नई ऐसी चीजें दे सकता है कि जो अफोर्डेबल भी हो, और उतनी अफोर्डेबल और उतने अच्छे से हो कि भी लोगों को सेल्फ मेडिकेशन करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, और किसी के कोई क्वेश्चंस कुछ हो
कोई भी रैंडम, अभी मतलब सेशन अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है, बीच में ही मैं पूछ रहा हूँ कि क्योंकि बहुत लंबा हो गया, एक ब्रेक के तौर पे किसी के मन में कुछ भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है मन में जो है जी। जैसे पिंपल्स होते हैं तो काफी बार कहा जाता है उसको विक्स लगा लो तो जल्दी सही हो जाएगा, ठीक है। वो सही है इसमें? देखो भाई मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी सही नहीं है ना, क्योंकि विक्स का मैं फ्रेंकली बताऊं मैंने पहली बार सुना है ना। विक्स का सुना है किसी ने? हाँ सुना है ना। हाँ वो तो सुना है मैंने, कोलगेट तो सुना है कि कोलगेट लगा लो। देखो विक्स का मुझे नहीं लगता है कि विक्स का कहीं कोई ऐसी कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होगी या कुछ ऐसी चीज होगी कि जो मतलब ऐसा करे। आप लोग फार्मासिस्ट हो, इसका जवाब आप लोग बहुत अच्छे से दे पाओगे कि विक्स उस चीज में वर्क करेगा नहीं करेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ जो ऐसी चीजें हैं जो BHA से हैं, यानी बीटा हाइड्रोक्सिक एसिड जिनमें है, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड है, या फिर कुछ जिनकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी ऐसी है कि जो एज ए एंटीबैक्टीरियल वर्क कर सकें, वो चीजें थोड़ा बहुत इफेक्ट देती हैं, है ना। जैसे हम जब भी मेडिसिन हम यूज करते हैं तो नॉर्मली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट टेकने के लिए क्या होता है, दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। या तो हम BHA यूज कर रहे हैं, जैसे आपकी सैलिसिलिक एसिड हो गया या फिर आपकी एजेलिक एसिड हो गया, उस तरह की चीजें यूज करते हैं। या फिर एंटीबायोटिक्स में जैसे क्लिंडामाइसिन है, एडापिलिन है, ठीक है, ये सारी चीजें यूज करते हैं। और उससे मिलती भी जैसे हल्दी की भी जो बात होती है ना, हल्दी के अंदर क्या है कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज उसकी बहुत अच्छी हैं, ठीक है, तो इसलिए हल्दी उस पर जो वर्क करती है, ठीक है। लेमन भी एक सेंस में इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सिट्रिक एसिड बेस्ड चीजें हैं वो डेड सेल्स को रिमूव करती हैं, तो जिसकी वजह से जो हमारे पोर्स हैं वो पोर्स हमारे ओपन हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं, और उसकी वजह से कई बार फील होता है कि हाँ हमारे एक्ने रिड्यूस हो रहे हैं। बट उसको आप बार बार यूज कर रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हैं, तो वो नेचुरली फिर उसके बैड इफेक्ट होते हैं। तो भाई विक्स का तो मुझे बिल्कुल भी मतलब रिकमेंडेबल तो है ही नहीं, लेकिन ये है कि उसका पीछे हो सकता है कि कोई ऐसी चीज होगी जो इफेक्ट दे रही हो, वो आप मुझे बताओ कि ऐसा कुछ है। क्योंकि आपको तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहले विक्स ही बनानी शायद बताई जाती है, अभी नहीं बताई? अच्छा चलो ठीक है। हाँ और किसी का क्वेश्चन? सर वो आपने प्रोडक्ट्स मेंशन किए उनसे रिलेटेड है। हाँ तो सर आप होम्योपैथ हैं और जो आपके प्रोडक्ट्स हैं तो वो आपने डी फार्मा करने के मतलब वो एलोपैथी बेस्ड है या होम्योपैथ? मैं बताता हूँ, देखो मेरा स्टोरी 2 मिनट में अपनी स्टोरी बता देता हूँ कि मैंने अपना 2011 में मैंने अपना BHMS कंप्लीट किया था। तो बीइंग ए BHMS मेरा था क्योंकि BHMS के बाद स्कोप होता है कि भाई आप सिर्फ जो है होम्योपैथी कर सकते हैं, ठीक है। मुझे एस्थेटिक में जाना तो लग बाई चांस उस टाइम पे NCA था, नेशनल कॉस्मेटोलॉजी एसोसिएशन USA, उन्होंने एस्थेटिक्स को लॉन्च किया था। अब से पहले क्या होता था कि अगर आपको किसी को मतलब एस्थेटिक्स करना है तो उसके लिए आपको पहले ग्रेजुएट होना पड़ेगा MBBS, उसके बाद आपने प्रॉपर MD करना है डर्मेटोलॉजी में, और उसके बाद एस्थेटिक्स कोर्स करते थे। बट नॉर्मली क्या होता है इंडिया से बाहर जितना भी एस्थेटिक है, एस्थेटिक एक ऐसी चीज है जिसको आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करते हैं, है ना। इवन आप लोग भी एस्थेटिक प्रैक्टिस जो है कर सकते हैं, लेजर वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर एस्थेटिक कोर्स होते हैं, बट वो इंडिया में नहीं था। तो जब पहली बार वो लॉन्च हुआ तो उस टाइम मैंने उसको किया, और करने के बाद आई वॉज द फर्स्ट डॉक्टर जिसने मतलब एज ए होम्योपैथ उसको स्टार्ट किया था, ठीक है। तो लगभग 2015 तक सिर्फ मैंने ही होम्योस्थेटिक्स को प्रमोट किया। जब मुझको भारत गौरव अवार्ड उस चीज के लिए दिया गया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी थेरेपीज हैं जो स्पेशली मैंने ही डेवलप की हैं, जैसे मोल रिमूवल विद RF। आप अगर सर्च करेंगे तो 90% मोर देन 1000 वीडियोस आपको इंटरनेट पे मेरी ही मिलेंगी कि एक सेटिंग में बिना किसी सर्जरी के हम मोल को इजीली रिमूव कर सकते हैं। फिर मेरा अपना इंस्टीट्यूट भी है, तो वहां पे जब मैंने उसको स्टार्ट किया, और पहले मैं प्रैक्टिस करता था सिर्फ होम्योपैथी के साथ, मतलब होम्योपैथी और साथ में लेजर्स। फिर मुझे क्या फील हुआ कि यार सिर्फ होम्योपैथी मेडिसिन जो है इंटरनल यूज के लिए बहुत अच्छी हैं, बट टॉपिकल यूज के लिए उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। ऑल्दो कुछ मेडिसिन हैं जैसे बर्बेरी सैक्यूफोलियम, आप लोगों ने सुना होगा, काफी अच्छी मेडिसिन है ना, तो वो वर्क करती हैं, बट मोस्ट ऑफ द मेडिसिन वो रिजल्ट नहीं मिलते हैं, ठीक है। तब जाके फिर मैंने थोड़ा सा अपना और रिसर्च वगैरह करके हमने उस तरह के प्रोडक्ट डेवलप किए कि जो हैं कॉस्मेटिक्स में ही, बट आपके ड्रग्स वाले प्रोडक्ट ही, लाइक जैसे सारे के सारे प्रोडक्ट सैलिसिलिक बेस, मतलब जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें होम्योस्थेटिक इसलिए क्योंकि वो होम्योपैथिक मेडिसिन इंटरनली प्लस एस्थेटिक्स, यानी कि जितनी भी जो हमारी लेजर्स, जितने भी इक्विपमेंट, सारे के सारे अभी मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे एस्थेटिक प्रोडक्ट्स हैं। एस्थेटिक पता है सभी को? एस्थेटिक प्रोडक्ट्स पता है सभी को? ठीक है, करूं ब्रीफ थोड़ा सा? हाँ करूं ब्रीफ। देखो एस्थेटिक क्या है, दो चीजें हैं। वन इज
कॉस्मेटिक्स, एस्थेटिक्स एंड ड्रग्स, प्रॉपर जो ड्रग्स में आ जाते हैं। ठीक है, एस्थेटिक में क्या होती हैं, लाइक कॉस्मेटिक्स की आप कोई भी ऐसी मेडिसिन की जिसमें हम परसेंटेज एक मिनिमम हम यूज कर रहे हैं, लाइक जैसे कि सैलिसिलिक एसिड है, अगर सैलिसिलिक एसिड हम 2% तक यूज कर रहे हैं तो हम कॉस्मेटिक्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम ग्लूटाथोन वगैरह या सप्लीमेंट्स वगैरह जो है उनको यूज कर सकते हैं। वहीं अगर हम 10% सैलिसिलिक यूज करते हैं या फिर हम 20% सैलिसिलिक यूज करते हैं तो फिर वो ड्रग्स में आ जाती हैं। ठीक है, उनके लिए प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। 2% सैलिसिलिक तक हम किसी भी अपने प्रोडक्ट में हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी जो होते हैं उनमें भी आजकल जो है यूज करते हैं, साथ में कॉम्बिनेशन थेरेपी जो है। तो आज के टाइम पे तो इंडिया का जो मार्केट है वो इस तरह का हो गया है कि उसमें कोई भी मतलब ऐसा होम्योपैथिक, एलोपैथिक कोई भी ऐसी चीज नहीं रह गई है ना, क्योंकि जितनी भी जो बड़ी कंपनीज हैं होम्योपैथिक में भी, जितने भी जो कॉस्मेटिक बन रहा है उनका फॉर्मुलेशन और आप एक नॉर्मल जो फॉर्मुलेशन देखोगे फेस वॉश, वो सबका सेम ही है ना। फेस वॉश यानी कि फेस वॉश है, आप उसको कैसे भी बना लो, आप उसको खाली होम्योपैथी से फेस वॉश नहीं बना सकते, खाली आप एस्थेटिक फेस वॉश नहीं बना सकते जब तक उसमें प्रॉपर सल्फेट्स, SLS, SLES, हालांकि आजकल सब पैराबिन सल्फेट फ्री प्रोडक्ट आ रहे हैं, बट वो चीजें बेसिक देना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उनके बिगर आप नहीं बना सकते हैं और इस चीज की नॉलेज आप लोगों को है। ठीक है, वही है कि अगर जैसे कि अगर हम भाई हमको कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाना है तो उसमें समझो हमने एक्सट्रैक्ट्स उसमें ऐड कर दिए 2%, 3%, तो हम उसको क्लेम कर सकते हैं कि हाँ भाई 10% भी अगर उसमें है कि ये एक प्रोडक्ट एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है ना। बट उसमें 10% एक्सट्रैक्ट है और वो भी एक्सट्रैक्ट है, उसके अलावा तो जो है बाकी सारा का सारा वो नॉर्मली फॉर्मुलेशन है। तो ये है, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका क्वेश्चन था, तो जो हमारे मतलब जितने भी जो ब्रांड है, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो सारे एस्थेटिक प्रोडक्ट, और मोर ओवर हमारे सप्लीमेंट बेस्ड ज्यादा है, जैसे ग्लूटाथोन है। ठीक है, उसी तरह के ही ग्लूटाथोन, सप्लीमेंट्स, कोलेजन जो इंटरनली हील करते हैं, उस तरह के प्रोडक्ट्स वो होते हैं। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन? सर एक में होने पे हमें क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए? हाँ देखो, सबसे पहले तो स्टॉप सेल्फ मेडिकेशन। ठीक है, वो तो अपना सोचना ही नहीं। देखो, सेल्फ मेडिकेशन के नाम पे अगर आपको यूज करना है ना, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे स्टीम लेना है ना, सबसे अच्छा मतलब स्टीम तो मैं एक मानता हूं ऐसी चीज है कि अगर आप नॉर्मल भी हफ्ते में एक बार ले लेते हैं ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस की को ठीक कर देगी, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ कॉस्मेटिक कोई यूज करता ही है, चाहे वो एक मॉइस्चराइजर ही लगा रहा है, चाहे वो नॉर्मल वैसलीन लगा रहा है, चाहे वो एक कुछ भी लगा रहा है फेस पे, वो कुछ ना कुछ तो हर कोई यूज करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पोर्स जो है वो ब्लॉक होते हैं। तो जब आप स्टीम लेते हैं तो स्टीम क्या वर्क करती है कि वो आपके पोर्स को ओपन कर देती है, डिटॉक्स कर देती है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो ये है कि अगर आप रेगुलर स्टीम लेते रहते हैं तो कई बार आपके पोर्स जो है वो ओपन पोर्स दिखने लगते हैं। ठीक है, अब ये तो सब चीज सब लोग बताएंगे कि भी स्टीम लो, लेकिन एक चीज ऐसी है जो मैं बताने वाला हूं, वो जब भी आप स्टीम लें वो आपको जरूर करना है। आपको क्या करना है, आप जब भी स्टीम लें अपने पास एक आइस क्यूब रखें। ठीक है, जैसे ही आपने स्टीम लिया तुरंत कुछ सेकंड्स के लिए एकदम वो आइस क्यूब उठाया और फेस पे जो है रब कर लिया। ठीक है, तो उससे क्या होगा, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से जो आपके पोर्स ओपन हुए हैं ना, वो एकदम इंस्टेंट यूज करने की वजह से एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, जिससे हाइड्रेशन वगैरह बना रहेगा, एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो बाहर नहीं आएगा। क्योंकि ऐसा भी होता है कि जब आप बहुत ज्यादा स्टीम लेते हैं ना, तो आपका फेस लगातार ही ऑयली रहने लगता है। अब आइस फेशियल क्या है, जिन लोगों को एक्ने की वजह से ओपन पोर रहते हैं, जिन लोगों को डलनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, उन लोगों के लिए, जिन लोगों को इवन सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, धूप में बाहर जाने पर रेडनेस हो रही है, इचिंग हो रही है, उनके लिए ये बहुत अच्छा वर्क करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, एक बड़ा सा बॉल लेना है ऐसा कि जिसमें फेस आपका चला जाए। आपने आइस लिया, पानी लिया, ब्रीथ इन एंड उसको 5 सेकेंड्स के लिए आपने जो है रखा, बाहर निकालो फेस को, नॉर्मल होने दो टेम्परेचर 5 सेकंड्स के लिए, फिर आपने उसको किया। ऐसे आप 2 से 3 बार करो, करके फेस को क्लीन करके बिना कुछ अप्लाई किए सो जाओ। तो इससे क्या होता है, ये जब भी जो एक ठंडा वाटर है, चिल्ड वाटर है, वो आपकी जो हमारी जो कैपिलरीज है ब्लड की, उनको वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड फ्लो को जो है कम करता है, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी, रेडनेस कम हो जाती है, जिसकी वजह से अगर जो एक्ने में जो इन्फ्लामेशन है, जो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन के कारण जो चीजें हैं वो रिड्यूस हो जाती है। तो वो बहुत अच्छा एक तरह से होम रेमेडी काम करता है। तो स्टीम एंड ये दूसरा जो मैंने बताया फेशियल, अगर ये भी आप यूज करते हैं और अच्छी तरह से पानी पीते हैं, वर्कआउट अच्छे से करते हैं, तो एक्ने होने के चांसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं।
ठीक है। अगर हार्मोनल एक्ने किसी को है कि भाई वो हार्मोन्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, उसकी वजह से एक्ने हो रहे हैं, या फिर कंट्रोल अगर एक्ने नहीं हो रहा है, आपने 1-2 एक्ने निकला, आपने मेडिसिन ली, मेडिसिन से ठीक हो गया तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, अगर एक भी एक्ने फेस पे आया ना तो वो अपना स्कार छोड़ता है, और वो धीरे धीरे करके लोगों को क्या लगता है कि यार चलो 1-2 एक्ने निकल रहे हैं, अब क्या करें, ठीक हो जाते हैं, है ना। तो वो क्या है, लेकिन वो 1-2 एक्ने जो है ना, वो अगले 2-3 साल में देखोगे आपका पूरा फेस स्कार से भर जाता है। ठीक है, तो वो चीजें जो है अपना ध्यान में रखनी है। बस ट्रीटमेंट की बात करें थोड़ा, है ना, कि क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। देखो बेसिक अगर बात करूं कि एक एज ए बिल्कुल बेसिक रूट, जब आपको स्टार्ट हुए हैं एक्ने जो है, थोड़ा बहुत केयर, और ये मेनली आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को थोड़ी समझ है, ये नहीं कह रहा कि आप किसी को प्रेस्क्राइब करें, एक बता रहा हूं नॉर्मली जो आप कर सकते हैं। एक कोई भी BHA बेस यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी बेस, जैसे सैलिसिलिक एसिड बेस, कोई भी आप फेस वॉश यूज कर सकते हैं कि जो आपकी डेड सेल्स को रिमूव करे और अच्छे से आपके जो पोर्स हैं उसको क्लीन करे, और मैक्सिमम बस ज्यादा से ज्यादा 2 बार से ज्यादा आपको यूज नहीं करना है ना। 2 बार वो मोर देन सफिशिएंट है। 2 बार आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सुबह आपने कर लिया एक बार और कॉलेज से जाने के बाद कर लिया, अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा डस्ट है, डर्ट हो रहा है। हाँ, जो लोग ऐसे हैं कि भी आप कॉलेज से जाने के बाद भी अपना बाहर जा रहे हो खेलने के लिए और बहुत ज्यादा आप धूल मिट्टी में हो, तो आके चाहे 3 बार भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो भी कोई प्रोडक्ट यूज करें, है ना, प्रोडक्ट आपको ऐसे यूज करने हैं जो एक मतलब pH जिसका 5.5 बेस हो, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आपने ड्राई वाले प्रोडक्ट यूज कर लिए, नॉर्मल लोगों के लिए। और जिनको एक्ने है प्रॉपर, वो स्टार्टिंग में अपना क्लिंडामाइसिन यूज कर सकते हैं बेसिक, क्योंकि ऐसे एंटीबायोटिक की तरह वर्क करती है, बहुत अच्छा यूज करती है। ज्यादा हो रहे हैं तो एडापिलिन साथ में यूज कर सकते हैं। बेंजोइक जेल है, पर्टिकुलर कहीं स्पॉट है, लेकिन बेंजोइक इसलिए यूज नहीं करते ज्यादा क्योंकि वो कई बार एक्ने में डार्कनेस देती है ना, तो इसलिए क्लिंडामाइसिन, एडापिलिन सेफ है। ग्लेनमार्क की आती है डेरिवा CMS जेल है, तो मुझे लगता है कि मुझे आज तक उसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऑल्दो मेरे खुद के जो है 45 प्रोडक्ट आ रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसा है कि जो मैं ऑलरेडी यूज करता हूं, तो दैट इज सबसे सेफ, कि एक तो बहुत ज्यादा ड्राइनेस कॉज नहीं करती है और वो उसको बहुत अच्छे से जो है रिपेयर कर देती है। ठीक है, इसके अलावा अगर मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन तो वही है कि बहुत ज्यादा मेडिसिन पे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर अगेन वो वैसी चीज हो जाती है कि वो आपको प्रॉपर समझ के ही डॉक्टर से लेनी है। लेकिन उसमें ज्यादा जो है, अगर बहुत ज्यादा सिस्टिक एक्ने है तो आइसोट्राइन, है ना, आइसोट्रेटिनोइन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क करती हैं। इसके अलावा केमिकल पील्स वगैरह अगर है कि बहुत जल्दी किसी को अगर ठीक करना है, क्योंकि क्लिनिक पे हम क्या करते हैं, हमारे पास जैसे ट्रीटमेंट है, ऐसे पेशेंट आते हैं कि भाई मैं हमेशा ट्रीटमेंट के लिए पूछता हूँ कि यार आपको टाइम कितना चाहिए, है ना, क्योंकि एक्ने चाहे कितने भी सीवियर एक्ने हैं हम 1 मंथ में भी ठीक कर देते हैं। ठीक है, लेकिन वो फिर मेडिसिन से नहीं होगा, उसके लिए आपको जो है अलग अलग तरह के जो है साथ में प्रोसीजर, जैसे केमिकल पील है, केमिकल पील हमको करनी पड़ती हैं। इसके अलावा लेजर्स हैं, अच्छे अच्छे लेजर्स कर सकते हैं। एक्ने स्कार्स जो हैं, एक्ने स्कार के लिए सिर्फ और सिर्फ हम फिर लेजर्स पे ही जाते हैं। MNRF, माइक्रो निडलिंग, RF जो निडलिंग थेरेपी होती हैं, या फिर लेजर्स हैं अलग अलग तरह के, वो सारे लेजर्स इसमें जो है वर्क करते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे लगता है सब कुछ कवर हो गया। इसके अलावा किसी भी चीज से अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है। हाँ सर, क्या स्ट्रेस से भी हमारे एक्ने इफेक्ट होता है? बिल्कुल होता है। देखो स्ट्रेस एक ऐसी चीज है कि जिसको मैं बोलूं, ऐसी कोई सर से लेके पैर तक ऐसी कोई डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट स्ट्रेस से ना हो, है ना। तो बोलेंगे ना, चिंता ही चिता की जननी है। तो चिंता तो एक, देखो स्ट्रेस एक ऐसी चीज है कि कोई भी चीज, हर चीज स्टार्ट होती है, देखो सारी चीजें, बॉडी आपकी है तो हर चीज वो कोरिलेट करती है। आप स्ट्रेस ले रहे हैं, है ना, स्ट्रेस आपको है तो आपको प्रॉपर नींद नहीं आएगी। ठीक है, नींद नहीं आएगी तो आपका प्रॉपर कहीं ना कहीं वो जो है आपका पूरा रूटीन डिस्टर्ब होगा। रूटीन डिस्टर्ब होता है तो प्रॉपर हार्मोनल एक्टिविटीज जो है वो हमारी कहीं ना कहीं जो है डिस्टर्ब होती हैं। हार्मोन्स हमारे डिस्टर्ब होंगे तो वो सीबेसिस ग्लैंड्स को हाइपर एक्टिव करेंगे। अगर डायरेक्ट मतलब हमारा कई बार जैसे खासकर फीमेल्स में जब टेस्टोस्टेरोन लेवल कई बार हाई हो जाता है, वो ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, तब एकदम एक्ने जो है बहुत ज्यादा ट्रिगर करने लगते हैं। PCOD है, PCOD की वजह से एकदम एक्ने बहुत ज्यादा ट्रिगर करने लगते हैं। ठीक है, तो वो स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा, जो मैंने चीजें तुमको बताई ना, वाटर इनटेक, वर्कआउट,
ठीक है, योगा, मेडिटेशन, ये चीजें क्या है, ये ऐसा नहीं है कि आप योगा करोगे तो योगा आपके डायरेक्ट जो है मतलब एक्ने को ठीक कर रहा है, या योगा के अंदर कोई ऐसी चीज है वो डायरेक्ट जाके सीधा निशाना आपके जो है एक्ने पे लगा रहा है। नहीं, वो चीजें क्या करती हैं, वो आपकी बॉडी को हेल्थी करने में वर्क करती हैं, वो आपके स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने में वर्क करते हैं। अगर आप प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हैं, प्रॉपर रनिंग कर रहे हैं, तो वो आपके स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करेगी, आपकी बॉडी के ब्लड फ्लो को प्रॉपर अपना इंक्रीज करेगी, है ना, तो जिसकी वजह से एक्ने जो है हमारे रिड्यूस होते हैं। तो वो बहुत ज्यादा चीज जरूरी है। What basic lifestyle changes do you suggest? सेम जो मैं जब से बता रहा हूं, है ना, कि अच्छे से अपना देखो, अगर बिल्कुल ही बात करूं एक पूरा रूटीन की, अगर मैं बात करूं तो रूटीन में सबसे पहले जाती है हमारी स्लीप। प्रॉपर अपना स्लीप हो, है ना, जो अपना है कि भाई सुबह जल्दी उठो, अपना जल्दी सोना, जल्दी उठना, जो है उठते ही खाली पेट आपको जो है अपना वाटर इनटेक करना है। वाटर इनटेक के बाद अच्छा सा क्लींजर यूज करना है। क्लींजर के लिए हमेशा माइल्ड क्लींजर, ऐसे बहुत ज्यादा हार्ड केमिकल सोप वगैरह फेस पे यूज नहीं करनी है ना। आजकल जो जैसे नॉर्मल जितने भी जैसे फेस वॉश वगैरह हैं अच्छे जो है, तो फेस वॉश वगैरह हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डाइट, वर्कआउट, ये चीजें अपना अगर रखते हैं तो वो प्रॉपर अपना बहुत अच्छे से वर्क करता है। सर लेजर के साइड इफेक्ट्स नहीं होते? हाँ, लेजर ट्रीटमेंट करवाए तो अगर लेजर ट्रीटमेंट करवाएं तो उसके साइड इफेक्ट देखो, लेजर के साइड इफेक्ट होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, ठीक है। अगर आप एक लेजर की बात कर रहे हैं, लेजर आपने जैसे लेजर के मन में आपको आया तो आया भी, एक लेजर की मशीन होगी जिससे हम फेस पे यूज करेंगे तो वो बहुत हमारे फेस को ठीक कर देगी। बट लेजर्स क्या होते हैं कि लेजर्स के अंदर अलग अलग तरह की कैटेगरीज हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेजर फेस की बात करें तो फेस के लिए जो लेजर होते हैं, अगर एक्टिव एक्ने है तो उसके लिए हमको क्यूफिट लेजर करना है, क्यू स्विच लेजर करना है ना, जेनेसिस मोड उसमें होता है। अगर हमको स्कार करने हैं तो स्कार के लिए हमको CO2 लेजर यूज करना है। बट लेजर्स में क्या होता है, लेजर आज के टाइम पे जैसे चाइनीज लेजर मार्केट में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो लेजर्स क्या है, लेजर मशीन एक जो है वो आपकी 2 लाख रुपए से स्टार्ट होके 2 करोड़ रुपए तक लेजर मशीन है। अब क्या है, आप किसी ऐसे क्लिनिक पे गए जहां पे बहुत बेसिक लेजर्स यूज हो रही हैं, ठीक है। बेसिक लेजर का मतलब है कि वो लेजर ऐसी नहीं है कि उसकी वेवलेंथ उतनी प्रॉपर नहीं है कि आपने उसको फेस पे कर सकते हैं, आपने उसको फेस पे यूज किया और उसने आपको बर्न दी। हर चीज को इंडिकेट करता है। जैसे अगर क्यूफिट लेजर कोई भी है तो वो आपके मेलानिन को फोकस करते हैं, यानी कि जो टैटू रिमूव करने के लिए हम करते हैं, पिगमेंटेशन के लिए करते हैं। अगर आपके फेस पे, बॉडी पे कहीं पिगमेंटेशन नहीं है और हमने उस जगह लेजर दिया तो आपको कुछ फील ही नहीं होगा कि आपने लेजर लिया भी है, मतलब उसका इफेक्ट बिल्कुल जीरो होगा। वो सिर्फ वहीं पे वर्क करेगा जहां पे मेलानोसाइट है, जहां पे वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा। अब वहीं पे ही आप एक बेसिक लेजर यूज कर रहे हो, ठीक है। अब वो बेसिक लेजर क्या है, वो एक प्रॉपर वेवलेंथ दे रहा है। मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये आपकी लाइन की चीज नहीं है, तो शायद इतनी इजीली वेवलेंथ वगैरह समझ में ना आए, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं कि हमारी बॉडी को उस वेवलेंथ की जरूरत नहीं थी, हमने वहां पे दिया, उसने वहां पे टिश्यू डैमेज किया और वो प्रॉपर बहुत परमानेंट स्कार तक दे देते हैं, बर्न हो जाती है स्किन जो है, ठीक है। दूसरा, लेजर के साइड इफेक्ट किस तरह से होते हैं कि जब हम CO2 लेजर करते हैं एक्ने स्कार्स के लिए, ठीक है, यानी कि जो गड्ढे टाइप के फेस पे रह गए हैं, तो लेजर किस तरह से वर्क करता है कि वो कंट्रोल्ड तरह से आपकी स्किन को बर्न करता है, बर्न करता है बट कंट्रोल्ड तरीके से, जिसका प्रॉपर एक टाइम होता है कि 6 से 7 दिन के अंदर आपकी स्किन पूरी की पूरी डार्क होगी, डार्क होके जो है वो प्रॉपर रिमूव हो जाएगी। अब मैंने बोला है बीइंग ए डॉक्टर की भाई अच्छा आपको जो है प्रॉपर केयर करनी है, 8 दिन 10 दिन आपको घर से बाहर नहीं जाना है, बाहर जाना है तो सनस्क्रीन यूज करके जाना है। बट आपने क्या किया, आपने प्रॉपर सनस्क्रीन वगैरह यूज नहीं किए, तो वो यूवी रेज क्या करेंगी, आपकी स्किन को डैमेज करेंगी, जो PIH कॉज कर देंगी, क्योंकि वहां पे स्किन पे सेंसिटिविटी थी, अब स्किन आपकी एकदम डार्क हो जाएगी। तो वो लेजर का साइड इफेक्ट हुआ, बट वो लेजर की वजह से नहीं हुआ। कोई फोर्स में है, पुलिस में है, उन लोगों को मैं कभी भी कोई भी लेजर ट्रीटमेंट रिकमेंड नहीं करता हूँ। कोई किसान है गांव में जिसका रहना है, उनको मैं कभी भी लेजर ट्रीटमेंट रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि आप चाह के भी अपनी जॉब प्रोफाइल अगर उस तरह की, आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखो आज के टाइम पे जो एस्थेटिक फील्ड है ना, एस्थेटिक फील्ड ऐसा है कि आपको जो चीज चाहिए, है ना, आपको अपने फेस की शेप चेंज करानी है, आपको अपनी चिन लंबी करनी है, आपको अपना कॉम्प्लेक्शन क्लीन करना है, आपको चाहिए कि मेरे फेस पे बहुत ज्यादा एक्ने है, मुझे 2 महीने का टाइम है, मुझे एक भी एक्ने का स्कार नहीं चाहिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो आपके मन में आता है, जो चीज आती है, वो सारी की सारी चीजें पॉसिबल हैं। बट हमको ये देखना है कि क्या हम उस चीज को रेगुलर मेंटेन कर पाएंगे।
है ना, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि यार हम कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं चाहे वो एक्ने के लिए ही है ना, कि हम एक बार ट्रीटमेंट लेंगे वो डिजीज पार्ट है भी, चलो खत्म हो जाएगा तो खत्म हो गया। नहीं, ये चीजें सारी की सारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, इसको आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर आप लाइटनिंग चाह रहे हैं तो उसको आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ेगा। आप अगर आप एंटी एजिंग के लिए कोई चीजें ले रहे हैं तो आपको उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ेगा, तभी वो आपको लाइफ लॉन्ग अपना रिजल्ट देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। और किसी का कोई क्वेश्चन? Sir, your views on acne patches. एक्ने पैचेस लाइक पैचेस होते हैं उसको मतलब एक्ने के ऊपर लगा लो तो वो रिमूव कर देता है। अच्छा देखो, एक्ने पैचेस, हाँ ठीक है, देखो एक्ने पैचेस क्या है कि आज के टाइम पे ना अलग अलग तरह के प्रोडक्ट आ रहे हैं, हर तरह के जो है। ठीक है, अब एक्ने पैचेस एक्चुअल में क्या होते हैं, उसके अंदर वही चीज आप देखोगे, सैलिसिलिक एसिड है ना, सैलिसिलिक एसिड बेस्ड कोई भी चीज होगी वो सेम ऐसा हो गया कि जैसे हम केमिकल पील्स करते हैं, लाइक लो कंसंट्रेशन में आपने कोई भी ऐसी चीज मेडिकेशंस जो है एक पैच टाइप का बना के उसको लगा लिया, जैसे बैंडेड वगैरह आती हैं सेम उस तरह से, तो वो वहीं पे ही उसको जो वर्क करेगा, आप उसको रिमूव कर देते हैं तो अपना वो ठीक हो जाता है ना। तो दैट इज वो सेम मेडिसिन हो गई, है ना। सर जो लेजर से स्किन बर्न हो गई थी उसका ट्रीटमेंट क्या? ठीक है, देखो लेजर से अगर स्किन बर्न हो गई है तो उसमें पहले तो हमें ये देखना है कि लेजर से जो स्किन बर्न हुई है उस पर हुआ क्या है, कि अगर PIH हुआ है या फिर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई है या फिर आपको उसकी वजह से वहां पे पिगमेंटेशन जनरेट हो गया है ना, तो वो देख के उसके लिए ओरल मेडिसिन यहाँ पे ज्यादा वर्क करती हैं, है ना। जैसे ग्लूटाथोन है, तो ग्लूटाथोन क्या करता है, वो मेलानोसाइट को रेगुलेट करता है, हमारा जो सेंसिटिविटी है उसको हील करता है प्रॉपर, जो उसको खत्म करेगा। तो जो सेंसिटिविटी कॉज हुई है उसको खत्म करते हैं। दूसरा, अगर PIH हुई है तो PIH को खत्म करने के लिए भी, लेजर से जो बर्न हुआ है उसको खत्म करने के लिए भी लेजर होते हैं। ठीक है, बट वो अगेन वो पार्ट हो गया कि जिसको हमको देख के सजेस्ट मतलब लगेगा कि भाई हाँ इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, वो कभी भी किसी के लिए सेम नहीं होती, है ना। उसमें हमको जज करना पड़ता है कि भाई अच्छा ये हुआ है तो इस कंडीशन में अब क्या कर सकते हैं, लेकिन वो हो जाता है ट्रीट। ठीक है, मोर क्वेश्चंस? अभी इधर से कोई पूछ रहा था। चाय चाय हमारे जो डेली रूटीन है ठीक है, अफेक्ट डालते हैं इसके? देखो चाय बिल्कुल इफेक्ट डालती है ना इस चीज। फार्मासिस्ट हम समझाते हैं तो मानते नहीं, वो क्यों डालते हैं? देखो बीइंग डॉक्टर भी मैं समझाता हूँ, जिसको पीनी है वो तो पिएगा, वो डॉक्टर की भी नहीं मानेगा। ठीक है, लेकिन चाय क्या है, चाय कॉफी ये चीजें क्या है, अब अभी आप देखो, आप जब भी आप देखते हो चाय से, टी से बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं, है ना। कॉफी से अपने आप में बहुत ज्यादा मेडिसिन बनती हैं। तो ये क्या है, ये एक तरह की क्रूड फॉर्म हो गई। क्रूड फॉर्म में हम किसी चीज को जब हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसी चीजें हैं कि इनकी खुद की अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, तो जब हम इनको चीजों को लेते हैं ना, तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं उस चीज को इफेक्ट करती हैं। इसीलिए जब भी हम कोई मेडिसिन देते हैं, है ना, आपने देखा होगा कि जब भी हम होम्योपैथिक मेडिसिन खासकर कोई डॉक्टर देता है तो वो आपको बताता है कि भी आपको टी कॉफी ये सारी चीजें यूज नहीं करनी है ना, आपको जो है लहसुन प्याज यूज नहीं करना है। और ये चीजें नॉर्मली बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जिनमें हम अवॉइड कराते हैं। वैसे भी क्यों कराते हैं, क्योंकि इनकी अपनी खुद की मेडिसिनल प्रॉपर्टी उतनी स्ट्रांग होती है कि ये आपकी बॉडी को इफेक्ट करती हैं। भाई आप लोग चाय क्यों पीते हो, बताओ क्यों पीते हो? क्योंकि अच्छी लगती है ना, वो हमको एक स्ट्रेस को हमारे को रिड्यूस करती है, क्योंकि वो उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है ना। कैफीन जो है, कॉफी इसलिए पीते हैं क्योंकि वो आपको एक प्लीजेंट फील देती है, वो एकदम हैप्पीनेस वाला फील देती है, वो आपके स्ट्रेस को एकदम रिड्यूस करती है, क्योंकि वो एक मेडिसिन की तरह वर्क कर रही है और आप उसके मेडिसिन के एडिक्ट हो गए हो, है ना। चाय का एक एडिक्शन है ना, क्योंकि वो एडिक्शन किस चीज को हम बोलते हैं कि जब भी हम कोई एक ऐसी चीज ले रहे हैं ड्रग फॉर्म में कि भाई उसके आप लेने के आदी हो गए, तो ये समझो कि उस पे आप चाय पे डिपेंडेंट हो गए हो, तो वो आप चाह के भी उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो आप नहीं छोड़ पाते हो। और जो लोग नहीं पीते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत आसान लगता है कि यार चाय ही तो है, छोड़ो। जो लोग पी रहे हैं चाय 4-4 5-5 कप, उनको है कि वो चाय ना मिले ना तो पागल वाली स्थिति हो जाती है कि नहीं यार चाहिए, अब तो सर दर्द हो रहा है, अब तो चाय चाहिए, है ना। तो वो इफेक्ट करती है सारी चीजों में, मतलब नॉट ओनली इन एक्ने, मतलब वैसे वो हर चीज में वो इफेक्ट जो है वो करती है। स्किन हेयर से रिलेटेड आपको कुछ भी समझ में आ रहा हो कि भी अभी मैं हूं यहाँ पे कि अपना पूछना है तो पूछ सकते हो। हाँ प्लीज। हाँ देखो आज के टाइम पे क्या है, फेस पे हेयर्स बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है
है ना। अब होता क्यों है, होता जो है हार्मोनल, मेनली जिन लोगों को पीसीओडी है, पीसीओएस है, उन लोगों को हार्मोनल चेंजेस के कारण फीमेल्स में खासकर जब टेस्टोस्टेरोन लेवल या फिर हार्मोन इंबैलेंस होते हैं तो वो आ जाता है। अब इसके लिए अगर ट्रीटमेंट की बात करूं तो सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट बचता है, दैट इज लेजर, है ना। लेजर के अलावा कोई भी ऐसी चीज की मेडिसिन हम सोचें कि भी मेडिसिन से जो है इफेक्ट आ जाता है, वो नहीं आता है ना। इफ्लोरा वगैरह या बहुत सारे ऐसे एक्टिव्स हैं कि जो क्रीम्स आती हैं कि जिनको यूज करते हैं, जो नो डाउट इनिशियल उसमें इफेक्ट देते हैं, बट बहुत बाद में अगर हम देखेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं। उसके लिए लेजर ही सिर्फ एक प्रोसीजर है, एंड लेजर में भी डायोड लेजर, है ना। पहले होता था आईपीएल वगैरह जो टेक्नोलॉजी होती थी, आईपीएल वगैरह, बट सबसे बढ़िया और सबसे उसके लिए इफेक्टिव जो थेरेपी है दैट इज डायोड। लगभग कम से कम भी मिनिमम उसमें जो है 8 to 9 सीटिंग्स लेनी होती हैं, जिसमें हम मान के चलते हैं कि लगभग 70% तक हेयर बिल्कुल खत्म हो जाता है। हल्का हल्का सा रोआ टाइप का जो है वो विलस हेयर, यानी कि उतने हेयर जो एनर्जी प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं वो हेयर सिर्फ रह जाते हैं, ठीक है। बाकी टोटली सेफ है अगर अच्छा लेजर क्योंकि लोगों को कई बार लगता है कि यार लेजर अगर हम ले रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा मतलब स्किन पे कोई नुकसान कर देगा, बिल्कुल भी नहीं होता है। कोई रेडनेस नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी। और आजकल तो बहुत हाई एंड लेजर्स हैं, ल्यूमिनस वगैरह के लेजर हैं या फिर जैसे एल्मा के लेजर्स हैं, है ना। तो वो लेजर क्या है कि वो पूरी तरह से क्लीन भी कर देते हैं और बहुत अच्छे वर्क है। मतलब देखो कई बार होता है कि लोगों ने, आपने सुना होगा कि नहीं यार कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेजर से जो है कराए भी हैं, बहुत सारे लोग भी आपके आसपास ऐसे होंगे कि भी लेजर कराया लेकिन दोबारा हेयर आने लगे, इफेक्ट नहीं आया। वो अगेन वही चीज मैटर करती है जो मैंने बताया था कि हम टेक्नोलॉजी क्या यूज कर रहे हैं। अब मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि जैसे नॉर्मली पिको लेजर है, ठीक है। पिको लेजर जो एक्चुअल टेक्नोलॉजी है वो 1 CR प्लस आती है। मतलब पिको अगर आप एक मिनिमम यूएस एफडीए अप्रूव्ड लेजर लेते हैं तो पिको लेजर कम से कम भी जो टैटू पिगमेंटेशन हटाने के लिए होती है वो कम से कम भी आपकी मिनिमम 70 लाख की मशीन आती है, ठीक है। वही पिको लेजर आजकल जो है वो 2.5-3 लाख रुपए में भी पिको लेजर के नाम से है। अब आप मान लो अगर कहीं भी लेजर लेने जा रहे हैं तो आपके मन में तो एक ही चीज है, हाँ यार मैं पिको लेजर ले रहा हूँ, ठीक है। बट जो टेक्नोलॉजी है वो एक्चुअल में कितनी डिफरेंट है, ठीक है। तो वो चीजें मैटर करती हैं। ऐसे ही लेजर हेयर रिमूवल के लिए, लेजर हेयर रिमूवल पहले टर्म यूज होती थी, आज के टाइम पे सारे रिजल्ट को देख के ना मेडिकल उसने काउंसिल ने वो टर्म हटा दी। आज के टाइम पे हम लेजर हेयर रिमूवल यूज भी नहीं करते वर्ड, हम यूज करते हैं लेजर हेयर रिडक्शन, है ना। यानी कि लेजर से हेयर को सिर्फ हम रिडक्ट कर सकते हैं, 100% क्लीन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट होता है, मतलब बहुत अच्छे इफेक्ट होते हैं। तो वी हैव मतलब बहुत अच्छे, हमारे पास ल्यूमिनस का लेजर है, तो सर्च करोगे तो वर्ल्ड वाइड सबसे बेस्ट लेजर है। बहुत अच्छे से लगभग 90% तक हेयर को जो है पूरी तरह से रिडक्ट कर देता है, ठीक है। तो अगर किसी को और भी कुछ भी मन में डाउट हो ना, कभी भी मतलब मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए, कुछ भी हो, तो मुझे डायरेक्ट मेरे से रीच करना बहुत इजीली है। आप सिंपल डॉक्टर ललित कसाना सर्च करोगे तो इजीली मेरे सारे हैंडल्स, इंस्टाग्राम वगैरह सब इजीली मिल जाएंगे। डायरेक्ट मैसेज करो। हालांकि मैं खुद नहीं चलाता हूँ, बट मेरी 12 लोगों की टीम है प्रॉपर जो है जो आंसर करती है। तो आप उन लोगों से किसी भी तरह की कोई भी आपको जानकारी चाहिए आप ले सकते हो एनी टाइम, ठीक है। Good afternoon, everyone. Good afternoon. So over here we have students from pharmacy, commerce, management. So I'll tell you the purpose of why we are having varied fields over here. We are very fortunate to have Dr. Lalit Kasana over here, who's not only a doctor but an entrepreneur. He has set up his own practice. He has diversified into medication. He's diversified into products and services. So this is not only a subject of medical students, this is not only a subject of pharmacy students, but all this information is very motivating and useful even for the commerce and management students. I have been throughout a student of commerce, I have been a student of taxation, but I'll tell you, I did my internship with AstraZeneca, which is one of the biggest pharmaceutical companies, during my MBA. Thereafter, one of the biggest consulting projects that I did was also with a company that made health products in the US. So you never know what comes out very handy. You never know how your future gets shaped and where do you get experience, where your interest area lies. So this is the reason why we had such an amazing, informative, experienced speaker, Dr. Lalit Kasana, with us, and I would like all of you to give a big round of applause for him.
We are truly thankful to you for sharing your knowledge, sharing your wisdom with our students. I'm sure they have gained immensely, not only on the topic, but also on how to have your own establishment. I think this is a very, very important skill, and not many people are successful. These days, everybody is trying to step into the shoes of a venture startup. But how exactly to start a business is something which is only an art of an entrepreneur. So I think you can, considering he has already offered you direct communication, you can ping him and trouble him, asking questions on how to set up your own enterprise, how to venture out in this market. Pretty much right? Yeah, right. Thank you so much. Sir. सर ने बहुत अच्छी बात की है, और ये टॉपिक मैंने कभी जो है मतलब इस तरह से जो है आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि मैं कहीं भी अगर लेक्चर लेता हूँ तो लाइक बीइंग ए डॉक्टर ही लेता हूँ। बट सर ने बिल्कुल कहा है कि अगर मैं ओवरऑल अपने आप को देखूं तो मैं डॉक्टर से ज़्यादा एक एंटरप्रेन्योर अपने आप को देखता हूँ, है ना। क्योंकि अगर आप मेरे प्रैक्टिस आवर की बात करेंगे तो मैं सुबह 11 बजे क्लिनिक पे पहुंचता हूँ और 11 बजे से लेकर सिर्फ 3 बजे तक मेरी प्रैक्टिस होती है ना। इसके अलावा जितना भी मेरा टाइम है वो मैं सारा का सारा टाइम अपने बिजनेस को देता हूँ। और समझो कि अगर मैं बात करूं तो मैं डॉक्टर से ज़्यादा आप लोगों का हिस्सा ज़्यादा हूँ, है ना। क्योंकि मेरा ज़्यादा जो टाइम जाता है वो फॉर्मुलेशंस में जाता है, मेरा ज़्यादा जो टाइम जाता है वो फैक्ट्री विजिट्स में जाता है। और ये चीज़ मैंने देखी कि आज अगर मेरा कहीं पे बैच डलना है, क्योंकि मेरी लगभग पूरे ऑल ओवर इंडिया 6 से 7 जगह मेरी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो जिस दिन भी मेरा बैच डलना है कोई भी, मैं वहाँ पे खुद खड़ा होता हूँ। ये मेरा एक रूटीन है। और मेरा वीकली जो है 2 ऑफ होता है, मंडे ट्यूसडे, यानी कि जैसे आज कल और आज मेरा ऑफ था। तो प्रैक्टिस को बीइंग ए डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस को मैं बहुत कम टाइम देता हूँ, और वो टाइम की ज़रूरत भी है। क्योंकि आपको ये नहीं सोचना है कि आपको एक दायरे में नहीं रखना है कि अच्छा यार आप लोगों ने अच्छा MBA कर लिया तो आपके पास अब यही स्कोप है कि भैया आपको सिर्फ एक अपना प्रॉपर जो है उसी फील्ड में जाना है। या आपने अगर सपोज आप फार्मेसी कर रहे हैं तो आपने सोच लिया कि भाई मुझे तो सिर्फ एक फार्मेसी इस्टेब्लिश करनी है। मतलब आप समझो कि आप अपने करियर को कहीं से भी स्टार्ट करके कहीं तक भी ले जा सकते हो, है ना। कोई लिमिटेशन नहीं है। और बीइंग ए एंटरप्रेन्योर मैंने ये सीखा है या मैंने ये जाना है कि अपना जो माइंड है ना, अपने माइंड को कहीं भी आप एक मतलब उसको लिमिटेशंस पता ही ना हो। उसको ये पता ना हो कि यार तुम डॉक्टर हो, तुम्हारा काम सिर्फ मरीजों को देखना है। उसको ये पता ना हो नहीं यार तुम एक फार्मासिस्ट हो, तुम्हारा काम सिर्फ अपना एक मेडिकल स्टोर खोल के सिर्फ एक वो करना है ना, प्रॉपर करना है। आप कितनी भी बड़ी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, कितनी बड़ी कंपनी खड़ी कर सकते हो, बट आपके सामने एक विजन होना चाहिए, है ना। तो आपको ये है कि बीइंग ए स्टूडेंट भी, अगर मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको हमेशा बोलते हैं कि यार एक अच्छी नींद का आना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आपको एक अच्छी नींद आ रही है ना पॉजिटिव वे में, है ना, नींद आए थोड़ी आए, लेकिन जब तक वो नींद हराम ना हो जाए ना, जब तक आपको लगे कि यार आंख बंद करके मुझे फार्मेसी दिख रही है, आंख बंद करके मुझे फॉर्मुलेशन ही जो है वही सिर्फ नजर आ रहे हैं, आंख बंद करके मुझे अपने मैनेजमेंट वाली चीजें ही याद आ रही हैं, तो इट मीन्स कि आप अभी प्रॉपर अपना ना तो पढ़ रहे हो, ना अपना प्रॉपर मेहनत कर रहे हो, ना प्रॉपर अपना कोई भी काम कर रहे हो, वो काम कर रहे हो। ठीक है, मैंने आपको बताया कि भाई मैंने अपना जो है प्रॉपर डी फार्मा किया है ना। डी फार्मा से पहले मैं अपना प्रॉपर MBA भी पूरा कर चुका हूँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जो है। तो चीजें हैं कि अपने आप को लिमिटेशंस आपको अपने माइंड को नहीं बतानी है कभी भी कि भाई मेरी ये लिमिटेशन है। आप कुछ भी किसी भी फील्ड में हो, ये समझो कि भाई मुझे टॉप रहना है। ठीक है, मैंने जब भी कभी मैंने BHMS किया था, आप लोग अभी नए हो, आप लोग अभी आए हो यहाँ पे, जो लोग ग्रेटर नोएडा से जुड़े हुए हैं, जो लोग बहुत टाइम से यहाँ से हैं, वो जानते हैं कि मैंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की है। ठीक है, मैंने अपना बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है। मेरा 1 रूम का जो है यहाँ पे क्लिनिक था, पूरा जो है सिर्फ एक जगत फार्म में ही लेके क्लिनिक किया था। उसके बाद मेरा जो है अभी प्रॉपर जो है मेरे पास सिर्फ यहीं पे ही मेरे पास 25 लोग वर्क करते हैं, है ना। मेरा पूरा एक सेटअप है ऑनलाइन का, मीडिया का, मेरा प्रॉपर अपना प्लेटफॉर्म है, मीडिया का प्रॉपर सेटअप है। और जो चीज़ें मुझे पता है कि वो चीज़ें नहीं रहनी, मुझे हमेशा टॉप पे रहना है, तो मुझे टॉप पे रहना है, क्योंकि मेरे माइंड ने मुझे हमेशा बताया है कि भाई डॉक्टर ललित कसाना का मतलब है कि तुझे हमेशा टॉप पे ही रहना है कैसे भी। और वो चीज़ें हर आप सभी के लिए एप्लीकेबल है ना। अगर आपके माइंड ने एक बार ये समझ लिया ना कि यार मैं टॉप पे हूँ, मेरे से आगे कोई नहीं जा सकता है, पॉजिटिव वे में, है ना। यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो चीज है आज के टाइम पे जो है ना, 2 चीजें हैं। एक कि लोग अच्छा होने के लिए नेगेटिव चीजों का सहारा लेते हैं, एक लोग अच्छा होने के लिए अपनी मेहनत और पॉजिटिव रास्ते का सहारा लेते हैं। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है।
है ना। चाहे आप कामयाब हो पाओ ना हो पाओ वो अलग बात है, लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ होना है। और जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ होंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको टॉप पे होने से रोक पाए, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। Thank you so much, Dr. Kasana. We hope आपकी 12 लोगों की टीम बहुत जल्दी 25-50 लोगों की भी हो और उसमें काफी सारे ईशानियंस भी हो जो प्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। थैंक यू सो मच। आंसर हाँ, एक बात और बताऊंगा, मेरी टीम में जितने भी लोग हैं जो मेरी हमारी ऑनलाइन मतलब मेरी जो ऑनलाइन वाली टीम है, मेरा 2 फेज है क्लिनिक के। एक है कि जो ऑनलाइन वाला सर्व देखते हैं तो वहाँ पे हम वर्क करते हैं एज ए टेलीकॉलर। यानी कि टेलीकॉलर में क्या है कि भैया आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो मतलब जैसे आप लोगों से मैंने बताया है ना, आपको कोई क्वेरीज पूछनी है, आप लोग समझो कि उसमें 8 लोग हैं और वो 8 के 8 जो है सब बी फार्मा और डी फार्मा है, ठीक है। क्योंकि सर मेरा विजन था कि आप लोगों से ज्यादा कोई उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझ सकता है ना। तो अभी तो आप लोग स्टूडेंट हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि आप लोग अगर जुड़ेंगे बाद में आके तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, फिर जरूर आके मिलो। जितनी भी हेल्प हो पाएगी पूरी की पूरी हेल्प होगी। I'm not ready yet, ready to forget now. I'm not ready yet, ready to forget. I'm not ready yet. I'm not ready yet. Patience and listening, and also participating in well and asking questions. Thank you very much, sir. थैंक यू मैम। You had a wonderful guest lecture, and I hope all the students have gained much knowledge. Please can you maintain some silence? So I hope आपको कुछ knowledge मिल गई होगी, and most किसी को अगर कोई केस है आप में नहीं होगा, आपके घर के किसी सदस्य को हो सकता है, so you are most welcome to Dr. Sir Clinic. He is in Jagat Farm itself. So we thank you so much. थैंक यू वेरी मच मैम। for coming. थैंक यू एवरीवन। Thank you. Humans, what have you learned?